Hello everyone, myself Renuka Budhwani and today I am going to discuss about Competition Act 2002. So अब ये क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट के पहले कोई पहले एक्ट था. So yes, there was MRTP Act. So MRTP Act has become obsolete in certain areas in the light of international economic development related to the competition law. So ये delete किया गया for the development of international economy. सो द नेक्स्ट वॉज क्या इस चीज़ की हमको नीड पड़ी. सो द नीड वॉज फेल्ड टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम कर्बिंग मोनोपोलीज टू प्रमोट कॉम्पिटिशन. MRTP एक्ट फोकस करता था मोनोपोली पे. मोनोपोली का मतलब है नंबर ऑफ बायर्स मोर देन नंबर ऑफ सेलर्स. सो सेलर्स बायर्स के ऊपर रूल करते थे. नाउ द क्वेश्चन इज़ what is the difference between MRTP Act and Competition Act. Just because MRTP Act का जो structure था बहुत rigid था, it was not flexible, that's why Competition Act was introduced. So इस act के काफ़ी benefits हैं. So MRTP Act and Competition Act, the concept of competition are not expressly defined in the MRTP Act, but competition में वो clearly define है. और MRTP Act में कोई regulation का combination का regarding रूल नहीं था, बट कॉम्पिटिशन एक्ट में प्रोविजन ऑफ रेगुलेशंस दिया गया है. और MRTP एक्ट में कोई एडवोकेसी रोल नहीं था, बट कॉम्पिटिशन में है. और MRTP एक्ट में कोई पेनाल्टीज़ इम्पोज नहीं होती थी अगर आप मोनोपोली भी करते हो, बट कॉम्पिटिशन एक्ट में देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ पेनाल्टीज़. और MRTP एक्ट में कोई कमीशंस नहीं थी, बट कॉम्पिटिशन एक्ट में देयर इज़ अ कमीशन. और now let's discuss the object of Competition Act. So first one is to protect the interest of consumers. ये एक्ट कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट प्रमोट करता है. द थर्ड वन इज़ प्रिवेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल कंपनीज और प्रिवेंट द एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. इसका मीनिंग ये कि बिग कंपनीज कभी भी स्मॉलर कंपनीज के ऊपर ओवरटेक ना करें, तो ये एक्ट उस पर भी फोकस करता है. द फोर्थ वन इज़ टू प्रिवेंट दोज प्रैक्टिसेस विच हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. सो जो एडवर्स इफेक्ट है उन पे वो ध्यान देता है. द फिफ्थ वन इज़ टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट. The last one is to regulate the operation and activities of combination that includes acquisitions, mergers and amalgamation. So under this act there are three major headings, that is prohibition on certain agreements. The second one is abuse of dominance position. The third one is position and regulation of combination. So section 3 deals with the provision of entering into anti-competitive agreement that is prohibited. The next one is section 4 that deals with prohibition abuse of dominant position by any enterprises. The next one is section 5 that deals with the combination of enterprises, and the section 6 describe about the regulation of the combination. So it is very important to understand the terms, that is anti-competitive agreement, the abuse of dominant position, the combination and their regulations, and the last one is adverse effect on competition. So these are the terms which are very important in the Competition Act. Without this, our competition is incomplete. So now what is anti-competitive agreement? Section 3 provides that no enterprise or person shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which cause or likely to cause an appreciable adverse effect on the competition within India. इसका सिंपली मीनिंग यही है, कोई भी एंटरप्राइज या पर्सन को ऐसे कोई भी अग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए जो कि कॉज कर रहा है या इन फ्यूचर वो कॉज करने वाला है क्या, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन कहीं पे भी इंडिया में.
सो कोई भी अगर अग्रीमेंट करता है अंडर सेक्शन 3 दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज एक्विजिशन एनीथिंग दैट विल consider the void. Now there are two types of anti-competitive agreement, that is horizontal agreement and vertical agreement. So what is horizontal agreement? Horizontal agreement is an agreement for cooperation between two or more competing बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम लेवल इन द मार्केट. इट मीन्स ये अग्रीमेंट ऐसे हैं जो राइवल्स के बीच होते हैं और ये नेगेटिव इम्पैक्ट लाते हैं मार्केट में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which agreements are considered as horizontal agreement. The first one is determine the price of purchase or services of goods or services. The second one is control the production, supply, technique, development or investment of goods or services. The third one is sharing or allocation of market on the basis of geographical or market basis. The fourth one is bid rigging. So these agreements are considered as horizontal agreements under the Competition Act, and these agreements are from the beginning void ab initio, because in these agreements the rule is apply of as per se rule. Now the next question is, what are vertical agreements? Any agreement among enterprises or person at different stages or level of the production chain in different market in respect of production, supply, distribution of goods or services are known as vertical agreement. सो इसका सिंपली मीनिंग ये है, कोई भी अग्रीमेंट होता है अगर किसी एंटरप्राइजेस के बीच या पर्सनस के बीच एट डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन. इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चर कंपनी हूँ, मेरे यहाँ टीवी बनती है, तो उसके अंदर के पार्ट्स वो मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर रही हूँ. सो दिस विल कंसिडर अंडर द प्रोडक्शन चेन. सो ये सब अग्रीमेंट भी वॉइड है अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट और इस पे रूल ऑफ रीज़न अप्लाई होता है. इसका मीनिंग ये है कि जो CCI है वो कंसीडर करेगी कि आपने वर्टिकल अग्रीमेंट क्यों किया, बट हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग इट इज़ वॉइड. So the next topic is abuse of dominance. Section 4 of Competition Act deals with abuse of dominance. But first of all, we should know what is dominant position. It means operate independently of competitive force prevailing in the relevant market or affect competitors or consumers or the relevant market in company's favor. इसका बेसिकली सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी. जस्ट लाइक अमूल और दिनशा कंपनी है, दे बोथ आर रिनाउंड कंपनी ऑफ मिल्क. अगर बट स्टिल अमूल पहले से आई हुई है मार्केट में, सो अमूल को हर कोई जानता है. दिनशा बाद में आई थी. सो अमूल दिनशा को बोलता है कि आप मिल्क का प्राइस कम कर दो और मुझे ही सेल करो. तो ये एक टाई अप है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है कंज्यूमर्स को. इसीलिए, और ये अमूल वाला क्यों कर रहा है, क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में है. सो देखा जाए तो दिनशा को आने नहीं मिल रहा है थ्रू अमूल के. सो इट इज़ नॉट फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. सो इसी वजह से ये माना जाएगा कि अमूल वाला डोमिनेंट पोजीशन में है. द नेक्स्ट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस. व्हेन an enterprise or group of enterprise uses its dominant position in the relevant market in an exploitative manner or exclusionary manner, so it will be deemed as abuse of dominance. So the predatory price also cover under abuse of dominance. So what does it means? It means the price which are set to a very low level with the aim of eliminating competition. दैट मीन्स जो अगर कॉस्ट पड़ रही है किसी प्रोडक्ट की, उससे भी अगर नीचे हम किसी को प्रोडक्ट लगाते हैं, तो ये हमारा पर्पस है कि हमको कंपटीशन ख़त्म करना है. इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ मोनोपोली इन द इंडस्ट्री. सो ये क्रिएट कर देता है मोनोपोली के लिए.
सो लेट्स डिस्कस कि वो मोनोपोली कैसे हो रहा है और अदर फर्म को कैसे लॉस होता है जब एक फर्म अपना प्राइस लोअर कर देती है इन द कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी फर्म के, तो नेक्स्ट फर्म को लॉसेस होते हैं। सो जैसे ही वो बिज़नेस या फर्म लॉस में चला जाता है और वो बंद हो जाता है, तो उसके बाद जो पहली फर्म है वो वापस से जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ करके वो प्रॉफिट गेन कर लेती है वापस से। तो ये So the next topic is combination. It described under section 5 and 6. So combination includes acquisition, merger and amalgamation. Now what is acquisition? When one company take over the another company, that is A is a company, वो टेक ओवर कर रही है बी कंपनी को। तो कैसे टेक ओवर करेगी? या तो उसके राइट्स लेकर, या तो कंट्रोल करे उस बी कंपनी में, या तो उसके शेयर्स को एक्वायर कर कर, या तो उसके एसेट्स को एक्वायर कर कर। तो इसको एक्विजिशन बोला जाएगा। मर्जर एंड अमालगमेशन इज ऑल्सो सिमिलर लाइक एक्विजिशन, बट देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मर्जर एंड अमालगमेशन। मर्जर क्या होता है? जब ए कंपनी है बी के साथ मर्ज हो रही है तो न्यू कंपनी फॉर्म होगी सी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ के। बट अमालगमेशन में जब ए और बी मर्ज हो रहे हैं तो न्यू कंपनी बनेगी और अपनी पुरानी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगी, या तो ए होगी या बी होगी। सो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ करती है विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, सो हम इनको कॉम्बिनेशन मानते हैं। अगर सीसीआई को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन मिलकर इफ़ेक्ट कर रहे हैं हमारे कंपटीशन को, तो वो इनको पनिश करेगी। सो द नेक्स्ट इज सेक्शन 6 रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सो जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो प्री नोटिस देना पड़ता है सीसीआई को बिफोर 30 डेज़, और उसके बाद 210 डेज़ का हमको वेट करना रहता है। अगर सीसीआई कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है तो ये मान लिया जाता है कि हमको परमिशन मिल गई है। So there are 3 type of combination, that is the first one is horizontal, the second one is vertical and the third one is conglomerate combination. सो जो फर्स्ट टू कॉम्बिनेशंस है वो जस्ट सिमिलर है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट की जैसे। सो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इज़ लाइक जो राइवल्स के बीच में होता है, और वर्टिकल कॉम्बिनेशन इज़ लाइक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन उनके बीच होता है। और जो थर्ड वन कॉम्बिनेशन है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस के बीच नहीं होता है, बट वो लोग दो लोग मिलकर रिलेवेंट मार्केट में रूल करते हैं। So it is the regulating body of Competition Act 2002, that is Competition Commission of India. So section 7 deal with the establishment of the commission. So it will act as a body corporate and the head office shall be at a place as the central government may prescribed. The power and function of commission specifically defined under this act. Section 18 deals with duty of commission. Section 19 deals with inquiry into certain agreement. Again, section 19 deals with inquiry whether an enterprise enjoy dominant position or not. Section 20 deals with inquiry into combination. Section 21 deals with reference by statutory authority. Section 34 deals with power to award compensation. Section 36 deal with power to regulate its own procedure. Section 37 deals with to review its own orders. Section 42 deals with the penalties. तो ये ऐसा एक्ट है जो कि खुद पे रिव्यू भी करता है, इंक्वायरीज़ भी करता है, उसकी ड्यूटीज़ भी प्रिस्क्राइब्ड है, अवार्ड कंपनसेशन भी देता है और अपने प्रोसीजर खुद बनाता है और पेनाल्टीज़ भी इम्पोज करता है। सो नाउ व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। तो एक चेयरपर्सन रहेगा और 6 अदर मेंबर्स रहेंगे जो कि अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, और इनकी टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी 5 years. So what will be the power of commission? The commission shall have the power to regulate its own procedure, ये मैंने पहले ही बताया। The second one is the commission may call upon, कोई भी experts बुला सकता है। So ये भी एक उसका बहुत important power है।
So now what will be the duties of commission? The first one is to eliminate practice having adverse effect on competition. The second one is to promote and sustain competition. The third one is protect the interest of consumer. The fourth one is to encourage the competition. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सुओ मोटो खुद से सीसीआई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि नहीं? तो येस, इट इज़ अ पावर ऑफ सीसीआई टू इन्वेस्टिगेट बाय सुओ मोटो, या तो कोई अथॉरिटी के रेफरेंस के थ्रू भी कर सकती है। तो सीसीआई को पहले लगना चाहिए प्राइमा फेसाई कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या तो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन में। जैसे ही उसको दिखेगा तो वो डायरेक्ट करेगी डायरेक्ट जर्नल को कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, फिर डीजी वो उसकी रिपोर्ट बना के सीसीआई को रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट हो रहा है कि नहीं। सो डीजी अपने रिपोर्ट में मेंशन करेगा दैट देयर इज़ कॉन्ट्रावेंशन और नॉट। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो वो पार्टीज से पूछेगा इज़ देयर एनी ऑब्जेक्शन। अगर उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो मैटर क्लोज कर देगा। देन अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन है एक्ट का तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि डीजी के पास पावर कहाँ से आता है? तो सेक्शन 16 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट वो अपॉइंट होता है अंडर दिस सेक्शन, और इट इंक्लूड्स एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि उसके अंडर पे काम करेंगे। सो डीजी इज़ एक्ट एज अ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 ये बताता है दैट कमीशन विल डिटरमाइन दीज फैक्टर्स वाइल कंसीडरिंग द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सो वो कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रीज इन द मार्केट। कमीशन ये देखेगी कि जब कोई न्यू कंपनी आ रही है तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से कोई उनके लिए बैरियर्स तो नहीं है जिससे उनकी एंट्री को हार्म हो। सेकेंड वन, ड्राइविंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ मार्केट। कमीशन ये देखेगी यहाँ पे कि साथ में मिलके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स एक साथ निकल तो नहीं रहे। द थर्ड वन इज़ फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय हिंडरिंग एंट्री इनटू द मार्केट। अब कुछ लोग मिलकर ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि कंपटीशन का ही फोरक्लोजर हो रहा है, मतलब कंपटीशन ही ख़त्म हो रहा है। सो द नेक्स्ट वन इज़ अक्रूवल ऑफ बेनिफिट टू कंज्यूमर। इसका यहाँ मीनिंग है कि जितना हो सके आप कंज्यूमर को बेनिफिट दीजिए। द नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आप टाइमली इम्प्रूवमेंट कीजिए प्रोडक्ट में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज के रिगार्डिंग। The last one is promotion of technical, scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services. So first three factor तो नेगेटिव इन नेचर दिख ही रहे हैं, और DEF अगर ये तीनों फुलफिल नहीं होते तब हम इनको मान लेंगे कि ये अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है। सो अगर आपका अग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है और निकलता है तो सीसीआई आपकी एक भी नहीं सुनेगी और वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर देगी दैट आपका अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। सो ये है कंप्लीट हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, अगर आउटसाइड इंडिया कोई अग्रीमेंट बन रहा है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, कोई पार्टी ऐसा अग्रीमेंट कर रही है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है, या कोई एंटरप्राइज है आउटसाइड इंडिया जो डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ कर रही है और आउटसाइड इंडिया ही कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है बट इफ़ेक्ट इंडिया में आके उसका एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहा है, तो क्या सीसीआई के पास पावर है to inquiry upon such matter? So yes, under section 32 of competition act the CCI has power. It is known as extraterritorial jurisdiction. So CCI has power to inquiry upon all the matters which are mentioned under section 32 and take decision as it may fit
thing in accordance with the provision of this act. सो CCI के पास वही पावर है जो कि यहाँ पे दिए गए अंडर सेक्शन 19, 20, 26, 29, 30 इन अकॉर्डिंग टू दैट ही CCI इंक्वायरी करेगी. Section 49 of Competition Act 2002 deals with competition advocacy. It is a commission which is constituted for the purpose of formulating a policy on competition, including reviews of law related to competition or any other matters which is prescribed by state government or central government. जैसे ही रेफ़र होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से इस कमीशन को, कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी है विदिन 60 डेज़. जैसे ही रिपोर्ट आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि उसको इम्प्लाई करना है कि नहीं. इट इज़ नॉट बाइंडिंग दैट ये रिपोर्ट को उनको फॉलो करना ही है उस पॉलिसी को. द मेन पर्पस ऑफ दिस कमीशन इज़ दैट it will take suitable measures for the promotion of competition advocacy, creating awareness and imparting training about the competition issues. मेन पर्पस ये है कि competition advocacy से related ये लोग policies फॉर्म करेंगे, suitable measures लेंगे, create awareness करेंगे और training देंगे about competition issues. So now what is competition fund? Section 51 of the act deals with this. इस फंड में पैसे आते कहाँ से? तो जितने भी गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं वो, और जो फीस मिलती है अंडर दिस एक्ट एज अ पेनाल्टी, और जो इंटरेस्ट एक्रू होता है वो. ये सब पैसे कहाँ यूटिलाइज होते हैं? फॉर द सैलरी ऑफ चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो इस एक्ट के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए लगते हैं. Section 53A describe about competition appellate tribunal is now repealed by NCLT. पहले हमको अगर अपील में जाना रहता था तो हम कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते थे, बट वो अब रिप्लेस्ड होकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हो गई है. ये हुआ कब? ऑन 26 मई 2017 बाय फाइनेंस एक्ट अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन फाइनली पुट एन एंड टू द competition appellate tribunal compact, replacing it with the national competition law appellate tribunal. Now appellate tribunal for CCI is NCLT. The appeal shall be filed within a period of 60 days by aggrieved person. अब क्वेश्चन आता है कि अग्रीव पर्सनस कौन कौन से? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है, कोई एंटरप्राइज भी हो सकती है, या कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि किसी भी कमीशन या CCI के डायरेक्शन से अग्री नहीं करता है. Now the last topic is related to penalties which are mentioned under this act. सेक्शन 42 से लेकर 48 तक पेनाल्टीज से डील करता है. अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट का, तो जितना उसने प्रॉफिट अर्न किया उसका 3 टाइम्स उसको पे करना है. और हु इज़ लाइबल? एंटरप्राइज हु एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट, और एज वेल एज डायरेक्टर या ऑफिशियल कैन ऑल्सो बी लाइबल. देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस. अगर कोई एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस कर रहा है तो जितना उसने टर्नओवर किया उसका 10%, और कमीशन उसको डायरेक्शन दे सकती है कि आप डिवीज़न कर लीजिए उसका. देन हु इज़ लाइबल? एंटरप्राइज एब्यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन, और डायरेक्टर और ऑफिशियल भी लाइबल हो सकते हैं. द थर्ड वन इज़ फेलियर टू नोटिफाई अ रिपोर्टेबल कॉम्बिनेशन. अगर कोई प्रायर नोटिस नहीं देता है कॉम्बिनेशन का, तो जो भी टर्नओवर है या जो असेट है उसका 1% देना पड़ेगा. कौन लाइबल होगा? पर्सन और एंटरप्राइज जो कि
इसमें इन्वॉल्व हैं और डायरेक्टर्स या ऑफिशियल्स. सो द लास्ट वन इज़ फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ CCI. सो जो NCLT है जो वो बोले, जो फाइन लगाए, जो इम्प्रिजमेंट दे. देन so who is liable? Person failing to comply direction official also liable.